Hi everyone, good morning. Well, this is Sarfraz Khan and I welcome you all in my YouTube channel that is Grow Skills Academy. Well, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं जिसमें हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। ईरान और इसराइल के बीच जो जंग जारी है पिछले 10 दिनों से, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे, राइट? Well, there will be 10 questions and each question will have four options and you will be given 5 seconds to answer. सवाल 10 होंगे और हर सवाल के चार ऑप्शंस होंगे और उन्हें जवाब देने के लिए आपको मिलेगा 5 सेकंड्स, राइट? तो देर ना करें, अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं. Now let's get started, right? Now the first question on the screen here we have is, which country joined Israel in airstrikes on Iranian nuclear facilities on 21-22 June 2025? 21-22 जून 2025 को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों में इसराइल के साथ किस देश ने भाग लिया? वेल, ऑप्शन है यूके, बी रशिया, सी यूनाइटेड स्टेट्स एंड डी फ्रांस. वेल, यू हैव बीन गिवन 5 seconds to answer. तो 21-22 जून 2025 को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों में इसराइल के साथ किस देश ने भाग लिया? वेल, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट? Do something. Okay. Well, the correct answer is option C. So now excuse me, now we are moving towards the second question of this session is, which Iranian cities were targeted in the recent airstrikes by Israel and the US? हाल के इसराइल और अमेरिका के हवाई हमलों में ईरान के किन शहरों को निशाना बनाया गया? Which Iranian cities were targeted in the recent airstrikes by Israel and the US, right? Well, the options are Tehran, Mashhad, B, Shiraz, Yazd, C, Fordo, Natanz, Isfahan, and D, Qom and Karaj. Well, these are the options and you have been given 5 seconds to answer. सवाल ये है कि हाल के इजराइल और अमेरिका के हवाई हमलों में ईरान के किन शहरों को निशाना बनाया गया? वेल, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज Fordo, Natanz, Isfahan, right? So now we are moving towards the third question of today's session is, who was the high-ranking IRGC officers killed in the Israeli strike on 21 June? Who was the high-ranking IRGC officers killed in the Israeli strike on 21 June? 21 जून को इसराइली हमले में मारे गए आईआरजीसी के उच्च अधिकारी कौन थे? ऑप्शन ए इस्माइल कानी, बी बहनाम शहरियारी, सी अली बघेरी, and D Hassan Rouhani, right? Well, these are the options and you have been given 5 seconds to answer. 21 जून को इसराइली हमले में मारे गए आईआरजीसी के उच्च अधिकारी कौन थे? वेल, इसके सही जवाब है ऑप्शन बी, बहनाम शहरियारी, right? So now we are moving towards the fourth question of today's session. What type of bombers did the US deploy for the Iran strike mission? ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने किस प्रकार के बॉम्बर विमानों का उपयोग किया? ऑप्शन ए F-22 Raptors, B B-2 stealth bombers, C B-52 Stratofortress, and D F-16 Falcons. Well, these are the options and you have been given 5 seconds to answer. सवाल ये है कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने किस प्रकार के बॉम्बर विमानों का उपयोग किया? Well, the correct answer is option B. सही जवाब क्या है? ऑप्शन B, B-2 stealth bombers, right? So now we are moving to the fifth question of
today's session is, sorry, fourth question of today's session is, sorry, fifth question. What major consequences followed the missile strike on Soroka Medical Center in Israel? इसराइल के सोरका मेडिकल सेंटर पर मिसाइल हमले के बाद मुख्य परिणाम क्या रहा या क्या था? ऑप्शन ए, न्यूक्लियर मेल्टडाउन. बी, 50 plus people injured and fear of chemical exposure. C, attack repelled by Iron Dome. And C, no damage. Well, these are the options and you have been given 5 seconds to answer. सही जवाब देने के लिए और जवाब देने के लिए आपको मिल रहे हैं 5 सेकंड्स, राइट? सवाल यह है, इसराइल के सरोका मेडिकल सेंटर पर मिसाइल हमले के बाद मुख्य परिणाम क्या था, राइट? क्या रहा? इसके सही जवाब है ऑप्शन बी, दैट इज 50 plus people injured and fear of chemical exposure. 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए और fear of chemical exposures, right? चलिए, so now we are moving towards the sixth question of today's session. आज के सेशन का छठवां सवाल. What has been Iran's warning regarding US involvement in the conflict? संघर्ष में अमेरिकी भागीदारी को लेकर ईरान की चेतावनी क्या रही है? ईरान और इसराइल के बीच अमेरिका यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट दैट इज डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था ईरान से कि आप अनकंडीशनल सरेंडर कर दें, राइट? इसके जवाब में उन्होंने कहा, ईरान के नुमाइंदे, ईरान के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, राइट? तो इसी बीच अब कहा जा रहा है कि संघर्ष में अमेरिकी भागीदारी को लेकर ईरान की चेतावनी क्या रही है? Well, the options are, it will lead to global sanctions. B, it will destroy the US embassy. C, it is very dangerous for everybody. And D, it will improve Iran's diplomacy. Well, these are the options and you have been given 5 seconds to answer. सवाल यह है कि संघर्ष में अमेरिकी भागीदारी को लेकर ईरान की चेतावनी क्या रही है? वेल, इसके सही जवाब है ऑप्शन सी, इट इज वेरी डेंजरस फॉर एवरीबडी. उनका कहना है कि ये सभी के लिए बहुत ही खतरनाक रहेगा, राइट? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन of today's session, that is seventh question. What immediate consequence followed in Iran after the airstrikes? हवाई हमलों के बाद ईरान में तत्काल क्या प्रभाव देखने को मिला? सवाल क्या है? What immediate consequence followed in Iran after the airstrikes? हवाई हमलों के बाद ईरान में तत्काल क्या प्रभाव देखने को मिला? Options A, improved economy. B, internet blackout and fuel shortages. C, heavy rainfall. And D, government reform. Well, these are the options and you have been given 5 seconds to answer. क्वेश्चन ये है कि हवाई हमलों के बाद ईरान में तत्काल क्या प्रभाव देखने को मिला? वेल, इसके सही जवाब ये है इंटरनेट ब्लैकआउट एंड फ्यूल शॉर्टेजेस. इंटरनेट पूरी तरह से बंद और भोजन की कमी, राइट? तो ईरान और इसराइल के बीच पिछले 10 दिनों से जंग जारी है. दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, मिसाइल, ड्रोन अटैकिंग हो रहा है, राइट? इससे मानव जीवन पर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, राइट? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. Which global body called for an immediate ceasefire and de-escalation? सवाल क्या है? किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने तत्काल संघर्ष विराम और तनाव कम करने की अपील की? किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने, which global body, ने तत्काल संघर्ष विराम और तनाव कम करने की अपील की? मतलब कि भाई जंग लोग बंद कर दें, राइट? तो ऐसी अपील किसने की? ऑप्शन ए, नाटो.
B. UN Security Council, C. SARC, and D. World Bank. Well, these are the options and you have been given 5 seconds to answer. सवाल क्या है? किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने तत्काल संघर्ष विराम और तनाव कम करने की अपील की? well, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, that is UN Security Council. So now we are moving towards the ninth question of today's session is, which of the following militant groups increased attacks on Israel from Yemen? यमन से इजराइल पर हमले बढ़ाने वाले निम्नलिखित में से कौन से समूह हैं? ऑप्शन ए अल-कायदा, बी हिजबुल्लाह, सी हौतीस एंड डी हमास. यमन से इजराइल पर हमले बढ़ाने वाले निम्नलिखित में से कौन से समूह हैं? अल-कायदा, हिजबुल्लाह, सी हौतीस एंड डी हमास. वेल, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड. चलिए, I'm sorry that I already wrote the answer. Well, the correct answer is option C, that is Houthis, right? And now we are moving to the last question of today's session is, आज के सेशन का आखिरी सवाल क्या है? What did President Trump declare about the US airstrikes? राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी हवाई हमलों को लेकर क्या बयान दिया? ऑप्शन ए uncomfortable but necessary, a diplomatic failure, necessary for global security, or retaliation for past strikes. तो ऑप्शन आपके सामने है. Well, you have been given 5 seconds to answer. जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड्स मिल रहे हैं. सवाल क्या है? राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी हवाई हमलों को लेकर क्या बयान दिया? Unfortunate but necessary, a diplomatic failure, necessary for global security, or retaliation for past strikes. Well, the correct answer is option C, that is necessary for global security. Well, we have gone through 10 questions. तो आज के सेशन में और आज के क्लास में हम लोगों ने 10 ऐसे क्वेश्चन किए जो इस ईरान और इसराइल के बीच जो जंग जारी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं, राइट? चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए.